Hello, good evening, students. So, today we will continue our second chapter, that is real numbers and operations on real numbers. So, before that, everyone, please put your attendance in the chat box. 1, 2, 3, 4. Only 4, 5. Okay, fine. So, let us continue. So, our next topic is a root of positive rational number. Okay, so basically, we have to consider one or two things here. That is, we are going to find out root, and the number is positive as well as it is rational also. Okay, so now we know that x square is equals to 2, then x will be equal to under root 2, square root of 2, or x is equals to negative under root of 2, where square root of 2 and negative square root of 2 are irrational numbers. This we know. Now cube root of 7 and fourth root of 8, these numbers are irrational too. Okay, so if n is a positive integer and x raised to n is equals to a, then x is the nth root of a. Now how do we define this? See, यहाँ पे क्या दिया है हमें, x is equals to fifth root of 2. This root may be rational or irrational, we don't know that. For example, 2 raised to 5 is equals to 32. That is why 2 is the fifth root of 32. सी हमने यहाँ पे कहा था ना कि x raised to n is equals to अगर a है, so x is the nth root of a. So 2 raised to 5 is equals to अगर 32 है, so हम क्या कहेंगे, we will say 2 is the fifth root of 32. Clear? Now, which is an irrational number, like x raised to 5 is equals to 2 है, so x is equals to fifth root of 2. So we cannot find out fifth root of 2, or even if we find it out, it will be quite difficult, and this is again irrational number. All right, now the next thing we have is surds. So what exactly is surd? We know that 5 is irrational number, 5 is a rational number, but square root of 5 is not rational. Square root or cube root of any real number is either rational or irrational number. Similarly, nth root of any number is either rational or irrational. मतलब अगर आप किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर डालोगे, so it will be either rational or it will be irrational. That is quite obvious, isn't it? Okay, so Vaishnavi has joined little late, no issues, fine. So if n is an integer greater than 1, and if a is a positive real number, then nth root of a is x, then it is written as x raised to n is equals to a, or nth root of a is equals to x. If a is a positive rational number and nth root of x is, and if x is an irrational number, then x is called a surd. Surd is a irrational root. तो अभी अगर अभी इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, so what exactly is surd? हाँ, सर्ड मत बता रहा हूँ ना मैं, सर्ड मीन्स व्हाट, वही बता रहा हूँ. ओके विशाल, सो सर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जिसका कि हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते. ओके, नाउ लेट अस सपोज आई राइट हियर, जस्ट वेट. ओके, so let us suppose I write here square root of 9. It can be written as, it can be written as 3. 3 is rational or irrational? It is rational number, isn't it? 3 is a rational number, so it is not a surd, not surd. But if I write square root of 7, can we find out this? Square root of 7 पता है किसी को? अगर हमने फाइंड आउट कर भी लिया,
So it will be what it will be. It will be like x point like something, and it will be irrational. ठीक है. So square root of 7 is called surd. Clear? Clear, Vishal? Yeah. So in a surd, nth root of a, the symbol root is called a radical sign, n is the order of the surd, and a is called the radicand. Okay, so see, how do we read this? Nth root of a, the symbol root or square root is a radical sign, n is the order of surd. Okay, let us suppose I write like this: fifth root of 7. So what is order of this surd? What is order of this surd? What is order of this surd? It is 5. All right. Order of the surd is 5. Radical sign तो हमें पता है. Now what is radicand? What is radicand? What is radicand? नहीं, A नहीं, 7. It should be 7. ठीक है? Yeah. Now let's go further. Let A is equals to 7, n is equals to 3. अभी ध्यान में रखना, हमने कैसे लिखा है? nth रूट ऑफ a लिखा है, तो a क्या है? a हमेशा रेडिकंड है, जो कि रेडिकल साइन के अंदर रहेगा, और n जो है वो पावर ऑफ द सर्ड है या फिर ऑर्डर ऑफ द सर्ड है, एंड वी हैव टू राइट इट आउटसाइड द रेडिकल साइन. n कहां पे लिखेंगे? हम n लिखेंगे आउटसाइड द रेडिकल साइन, एंड a विल बी रिटन इनसाइड द रेडिकल साइन. ओके, सो n की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 दी है, a की वैल्यू 7 दी है, सो वी विल राइट इट लाइक दिस. अभी a की वैल्यू 27 है, n की वैल्यू 3 है, सो क्यूब रूट ऑफ 27, इज इट अ सर्ड और नॉट? इज इट अ सर्ड और नॉट? क्यूब रूट ऑफ 27. It is not a surd. Okay, Kadambari says it's not a surd. Vishal also says same. Okay, everyone is saying it is not a surd. Why it is not a surd? Because there is a rational value of cube root of 27. What is that? What is cube root of 27? Cube root of 27 is 3. All right, very good. Yeah. Now, third, cube root of 8 is a surd or not? Tell me. Is it a surd or not? Cube root of 8. Surd or not? It's not a surd. Right? Why? Because 2 cube is 8, and cube root of 8 is 2. So that's why it is not again a surd. Now, fourth root of 8 is surd or not? Fourth root of 8. Yes, it is surd. Yeah, it is surd. Fourth root of 8 is surd because we don't know what is the value of fourth root of 8, और even if we find out the value, हम वो value अगर find out कर भी लेते हैं तो क्या होगा? It will be irrational. Okay, so अभी किसी को डाउट है सर्ड क्या होता है, कैसे होता है? किसी को नहीं होना चाहिए. Okay, all right, no doubt, very good. So let's move further. Simplest form of a surd. So let me just erase this. I've taught this to the last batch. Okay, oh yeah. So simplest form of a surd. How do we simplify the surd? Let us suppose we have given square root of 48. अभी 48 को हमें simplify करना है. How can we do this? We have to split 48 such that we should get at least one perfect square. So how do we split it? Like this. We can even split like 6 into 8, right? 48 can be written as like this, no? 48 can be written as 12 into 4, or it can be written as 6 into 8, or it can be written as 16 into 3. But we chose 16 into 3 only. We didn't go for this. हमने ये नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा?
Why didn't we write this? Quadratic surd means, where is it? Is it given here? Okay, yeah, it's up here. Okay, the surd of order 2 is called quadratic surd. तो यहाँ पे it is self explanatory कादम्बरी, isn't it? अगर ऑर्डर 2 है, लाइक हम स्क्वायर रूट का निकाल रहे हैं, सो इट इज क्वाड्रेटिक. किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इफ द ऑर्डर इज 2, देन इट इज क्वाड्रेटिक सर्ड. क्लियर? या ओके फाइन. सो हमने यहाँ पे 12 इंटू 4 भी लिख सकते थे, 6 इंटू 8 भी लिख सकते थे, 16 इंटू 3 भी लिख सकते थे, या फिर 24 इंटू 2 भी लिख सकते थे. सो व्हाई डिडंट वी राइट एनीथिंग एल्स बट ओनली 16 इंटू 3? बिकॉज हम 16 का स्क्वायर रूट निकाल निकाल सकते हैं, बराबर ना. सो मैं 16 को कैसे लिखूंगा? 4 लिखूंगा, और क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज लिखूंगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड. Now this 3 inside the radical sign cannot be simplified further. अभी इसे हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. नाउ 98 को कैसे लिख सकते हैं हम? 98 कैन बी रिटन एज 49 इंटू 2. सो 49 का जो स्क्वायर रूट है वो आएगा 7, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो 2 ही रहेगा. ऑलराइट, सो इट इज 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2. अभी आप वो लिख नहीं पाओगे ना, आपको रेडिकल साइन लिखना नहीं आता है. सो कैसे लिखेंगे आप? मैं आपको बताता हूं. 7 r 7 रूट 2. ओके, इस तरह से आपको लिखना है, 7 रूट 2. ठीक है, जब कभी भी मैं आंसर पूछूंगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो, 7 रूट 2. ऑलराइट, नाउ ठीक है, चलो. सो विच इज नेक्स्ट वन? इफ देर इज square root of 2, square root of 3, square root of 5, then these type of surds are in the simplest form which cannot be further simplified. Right? So basically क्या है कि रेडिकल साइन के रेडिकल साइन के अंडर क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए. Isn't it? अगर प्राइम नंबर आ जाएगा तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी अदर फैक्टर्स. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा व्हाट वी कैन से प्राइम नंबर ही आना चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग. राइट, लाइक 15 भी आ सकता है. 15 अगर आएगा तो 15 को आप कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते आप 15 को. उसको स्प्लिट कैसे करोगे? ऑड ऑल्सो, या इट कैन बी एनीथिंग ना. इवन इफ यू लाइक राइट, लेट अस सपोज 18 को लिख सकते हैं 20. 20 is even number, isn't it? But 20 can be simplified. It can be simplified. 4 into 5. Yeah, it can be simplified. 4 into 5. Isn't it? 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, एंड रूट 5 को कुछ हम कर नहीं सकते. राइट, सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. तो हमें वो हर एक बार मतलब चेक करना पड़ेगा, बराबर. ठीक है, चलो. सिमिलर और लाइक सर्ट्स. और अभी देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा -3 into square root of 2 comma 4 by 5 square root of 2 are same, or are some like sets. So these are like sets. Why these are like sets? Because they have similar radicand. This the digit which is inside the radical sign is equal for all. अभी देखिए, यहाँ पे भी square root of 2 है, यहाँ पे भी square root of 2 है, यहाँ पे भी square root of 2 है. So it means that these are like sets. Did you get it? Get it, students? Yeah, fine. So these are like sorts. Now 45 and root of 45 and root of 80 are the surds of order 2. So their order is equal, but radicands are not same. Are these like surds? Are these like surds? Tell me, are these like surds? Square root of 48 and no, sorry, square root of 45 and square root of 80. Are they like surds? Okay, everyone is saying they are like surds. Why they are like surds? Because we are going to first of all simplify them. We are going to write them into its simplified form, and then we are going to compare. So 45 का जो simplified form है वो रहेगा 9 into 5 that is 45. So 9 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो बनेगा 3 root of 5, and 80 को हम कैसे लिखेंगे? 16 into 5. So वो बनेगा 4 root 5. So
3 root 5 and 4 root 5 are now similar or like surds. That's why square root of 48 and square root of 80 are also similar surds or like surds. ठीक है, तो इस तरीके से हमें उन्हें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है. नो कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स. लेट a and b are two positive real numbers, and if a is smaller than b, then a into a is again smaller than b into a. If a square is less than ab, similarly ab is less than b square. That is why a square is less than b square. Now अभी यहाँ पे ये सब करके हमें मतलब क्या पता चल रहा है? We are getting nothing, right? So here a and b are both real numbers, so they may have a rational number or surd. By using above property, let us compare the surds. ठीक है, अभी हमें क्या करना है? सर्ट्स को कंपेयर करना है. सो कैसे कंपेयर करेंगे? देखो, यहाँ पे 6 √2 है, यहाँ पे 5 √5 है. ओके, सो अभी ये जो 6 है, 6 अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, रेडिकल साइन के अंदर चला जाएगा, तो क्या बनेगा? 36 बनेगा. बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 36 is 6. And similarly this 5 will go inside and it will become square root of 25. So 25 5s are 125, 36 2s are 72. Now compare this. 72 is smaller than 125. That means 6 root 2 is smaller than 5 root 5. ठीक है, तो मतलब इन दिस केस, मतलब ऐसे केसेस में हम सिर्फ देख के कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट इट एवरी टाइम. इज इट क्लियर? वी हैव टू कैलकुलेट इट एवरी टाइम. किस किस को नहीं समझ में आया कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स? क्लियर है? ओके, फाइन. चलो, सो इनके मतलब यहाँ पे भी आपको सेम ही करना है. 8 √3 दिया है एंड √192 दिया है. सो 8 को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लेंगे तो वो बनेगा 64. 64 इंटू 3 इज 192. 192 192 बोथ आर इक्वल, सो दीज टू सर्ड्स आर इक्वल. तो इस तरीके से हमें कंपैरिजन करना है, तो मैं इस पे ज्यादा समय अपना इन्वेस्ट नहीं करूंगा. नाउ ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ड्स. ठीक है, सो अभी ऑपरेशन कैसे करते हैं? वी हैव 7 √3 and a 29 √3, and we have to add them. So how do we add them? We can add them simply 7 plus 29 and √3 as common factor. So 7 plus 29 is 36, right? 36 and √3 as it is. All right, so इस तरीके से हमें एडिशन करनी है. Now if there are unlike surds, सभी similar surds नहीं है. Okay, so in that case addition is not possible. एडिशन नहीं हो सकती. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, एडिशन नहीं हो सकती. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. 7 √3 minus 29 √3. 7 minus 29 बनेगा -22. दैट इज -22 √3. सिमिलरली यहाँ पे भी 13 plus 1/2 -5. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे √8 है, विच कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड. √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 2 लिख सकते हैं ना. सो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट? यहाँ पे बोला है ना हमें कि सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिर्फ इतना नहीं करना है. लाइक देखो, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ. लाइक 13 √8 दिया है और माइनस अगर बोला है आपको 5 √8. सो आप सिर्फ ऐसा नहीं लिखोगे कि 13 minus 5 is 8, 8 √8. This is not the correct this is not the correct way of simplifying this. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 8 √8 तो ठीक है, लेकिन 8 √4 into 2 आप लिखोगे, and you will take this 4 out. So 8 2s are 16, 16 √2. That will be the correct answer. ठीक है, तो सर्ड को आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई भी करना है, सिर्फ एडिशन नहीं करनी है. ओके, सो हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव फर्दर. अभी इसको सॉल्व करना है. 8 √5 प्लस √20 माइनस √125. तो पहले तो इन्हें हम लाइक सर्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे, एंड देन वी कैन डू द एडिशन.
ठीक है, अभी मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से होती है देखिए, मल्टीप्लीकेशन इज वेरी सिंपल। रूट ऑफ 7 है इंटू रूट ऑफ 42 है, सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 42 डायरेक्टली कर दो। सो 7 इंटू 7 इंटू 6 यहाँ पे बना, 42 को हम 7 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। सो 7 इंटू 7 इंटू 6 दैट मीन 7 स्क्वायर। सो 7 हम बाहर निकाल सकते हैं, 7 रूट 6 विल बी देयर मल्टीप्लीकेशन। सर हाउ इट केम 17, यहाँ पे बोल रहे हो ना, बिकॉज वी हैव अनदर टर्म ना 1/2। मैंने यहाँ पे 1/2 लिया नहीं ना, मतलब जब मैं आपको सिंप्लीफाई पर करके सॉल्व करके दे रहा था ना, तो वहां पे मैंने 1/2 लिया नहीं। सो अगर आप 1/2 बीच में लोगे तो आपका 17 आएगा, 17√2 आएगा, ठीक है। ये 1/2 यहाँ पे है, ठीक है विशाल, या ठीक है चलो। ना मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में तो सेम ही, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो डिवीजन हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। इवन इफ यू आर दे आर लाइक सेम सर्ट्स और दे आर नॉट, इट डजंट मैटर, यू कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड देम डायरेक्टली, राइट। सो अभी वन रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 अगर आपको लिखना है, सो यू कैन सिंपली डिवाइड 125 by 5, so 125 by 5 becomes 25, square root of 25 is 5, so simplified form is this, it is rational number, that means this is not a surd, right, ये surd नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उसका एक हमें rational आउटपुट मिल रहा है। all right, so again multiplication is here, that's it। now next topic we have is rationalization of a surd। so rationalize किस तरीके से करते हैं, पहले हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। if surd square root of 2 is multiplied by square root of 2, then we get square root of 2 into square root of 2, that is square root of 4, and square root of 4 is 2, is a rational number, so square root of 2 is a rationalizing factor of square root of 2। did you get this? मतलब अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हमें मिलता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक उसका स्क्वायर मिलेगा, दैट इज 2 मिलेगा, एंड 2 इज अ रैशनल नंबर। सो square root of 2 is making square root of 2 as a rational number, that means it is rationalizing it। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहेगा, या फिर या रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहेगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओनली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमें square root of 2 into square root of 8, which can be written as 8 into 2, that is 16, so 4 it is a rational number, so square root of 2 is the rationalizing factor of square root of 8। square root of 2 is a rationalizing factor of square root of 8। Similarly 8 square root of 2 is also a rationalizing factor of square root of 2। सो देखिए यहाँ पे मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। रैशनलाइजिंग फैक्टर में आपको मतलब हाउ डू वी फाइंड आउट रैशनलाइजिंग फैक्टर, जस्ट स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दिया है ना, वही नंबर मोस्टली रैशनलाइजिंग फैक्टर रहता है, प्रोवाइडेड दैट इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा है। अभी जिस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8, similarly square root of 8 is also a rationalizing factor of square root of 2, so square root of 8 can be written as 4, no, sorry not 4, 2 root 2, right। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 8 को हम टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, या। सो इफ यू सी दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब सिमिलर ही रहता है फैक्टर। नाउ square root of 6, square root of 16, square root of 15 are the rationalizing factors of root 2। सो ये हमें चेक करना है मोस्टली, ठीक है। सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इनटू इट, वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल सॉल्व द practice set that will be beneficial for us, right। so rationalizing factor of a given surd is not unique। if a surd is if surd is rationalizing factor of a given surd, then the surd obtained by multiplying it with any non-zero rational number is also a rationalizing factor of the given surd। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, अगर वो स्क्वायर रूट ऑफ 8 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। बेसिकली क्या हो रहा है, हम दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और उस मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट है वो आ रहा है एक रैशनल नंबर। सो दैट मीन्स both the numbers are helping each other to rationalize themselves, right। yeah,
ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट वी हैव नेक्स्ट इन द बॉक्स, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट ऑफ 27। तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 हमें नहीं पता है, इट इज सर्ट। क्यूब रूट ऑफ 27 is 3, but square root of 27 is a irrational number, so it can be written as 3 root 3. So 3 root 3 can be multiplied with root 3, so 3 into 3 is 9, it is a rational number. So square root of 3 is a rationalizing factor of square root of 27। ठीक है, so इस तरीके से अभी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर रैशनलाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको सिर्फ यहाँ पे यही बोला है कि डिनोमिनेटर रैशनलाइज करो, न्यूमरेटर इरेशनल रहेगा तो भी चलेगा। सो इन सच केसेस व्हाट यू विल डू, 1/√5 दिया है यहाँ पे, तो आपको √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा, √5 इंटू √5 5 बनेगा इन द डिनोमिनेटर, एंड इन द न्यूमरेटर इट विल बी √5 विच इज एक्सेप्टेबल। अगर न्यूमरेटर आपका इरेशनल है तो भी चलेगा, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए बोला है। किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम रैशनलाइजेशन में? नो, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है एवरीवन, ओके गुड, दैट्स गुड। सो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे इस एग्जांपल में, सो वी हैव 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 7। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि रूट ऑफ 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। गाइस प्लीज टेल मी, स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी that my voice is clearly audible to you, like there are no fluctuations or some extra sounds, is it clear now? Yeah, that is what is required, my voice needs to be clear for you. Okay, fine, thank you. So now let's move further. What is, we can make use of rationalizing factor to rationalize the denominator. It is easy to use the numbers with rational denominator, that is why we rationalize it. So most of the times you may need to rationalize the denominator only, you don't need to rationalize the numerator. ओके, न्यूमरेटर अगर इरेशनल है तो भी चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी नीड डिनोमिनेटर एज अ रैशनल नंबर। ऑलराइट, सो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करना होता है। सो चलो अभी वन वन बाय वन आंसर दो। फर्स्ट वन इज असर्ड और नॉट, वाई या फिर एन लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज सर्ड, ठीक है, इट इज असर्ड। सेकेंड वन, सेकेंड वन, ओके सेकेंड वन भी सर्ड है, ठीक है। थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन भी सर्ड है। फोर्थ वन, ये भी सर्ड है। फिफ्थ वन, ठीक है, सारे के सारे सर्ड है। ऑल राइट, नो इश्यूज। नाउ state which of the following, okay, it was, they were asking us to find out the order basically, right? So order कैसे find out करते हैं, this is order 3, इसके order क्या है, what is the order of this third, what is the order of this third, everyone, what is the order of this third? No, Ayush has given correct answer. Order of this third is 5. See, this 5 is multiplied with root 12. It is not order. Order तभी कहेंगे हम जबकि ये जो 5 है अगर यहाँ पे लिखा रहता ना, यहाँ पे, then it is order. Now what is the order of the given third? इसकी order क्या है? 2 is the order. स्क्वायर रूट है ना तो 2 आएगा, ठीक है। इसकी ऑर्डर रहेगी 4, दिस इज ऑर्डर 2 एंड दिस इज अगेन 3। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड्स, ये क्वेश्चन है। सो क्यूब रूट ऑफ 51, क्यूब रूट ऑफ 51 सर्ड और नॉट, यस और नो? यस,
All right. ठीक. Fourth root of 16, surd or not? Fourth root of 16, surd or not? Is it surd? Think again. Vinith says no. It's not a surd. It's not a surd. Then what is fourth root of 16? What is fourth root of 16? Fourth root of 16 is 2, which is a rational number, right? Then it cannot be a surd. Yeah, good. Now, this is not a surd. Let me cross this. Fifth root of 81. Is it a surd? Yes. Okay. Fifth root of 81. Is it fifth or fourth? It is fifth. Yeah, it has to be surd. Right. Fourth root of 81 is what? Fourth root of 81, surd or not? Yeah, fourth root of 81 is 3, so it is not surd. Very good. Square root of 256. Is it, this is not a okay, this is surd. Square root of 50, 256. Is it a surd? Is it a surd? Okay, everybody says it is a surd. What is the square of 16? What is square of 16? 256. So how come it is surd? It is not. It is not a surd, right? It is not a surd. Cube root of 64. Cube root of 64. Yes or no? Surd or not? It's not a surd. Somebody says yes. Ayush says yes. And the other Ayush says no. What do you think others? बाकी लोग क्या सोचते हो? वैष्णवी? Vishal has given answer. Okay, all right. It is not a surd. 4 fours are 16 and 16 fours are 64. So cube root of 64 is 4. So it is not a surd. Last one, 22 by 7. Surd or not? 22 by 7. It is a surd. Yeah, all right. It is a surd. ठीक है. Now, चलो अभी सिंप्लीफाई करना है हमें. Given, classify the given pair of surds into like surds and unlike surds. So like surds के लिए आप कैसे लिखोगे समझ मैं बताता हूँ आपको. ठीक है. You have to write first one it is like surd or first one it is unlike surd. ठीक है. So first one like और unlike. फर्स्ट वन नंबर लिखना है, सबने फर्स्ट नंबर लिखना है. फर्स्ट वन लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड. कैन यू कैलकुलेट? कंफ्यूजन? इट इज अनलाइक सर्ड. ओके, आई हैव गॉट वन आंसर. फर्स्ट वन नंबर लेना लिखना है कादम्बरी. ओके, फर्स्ट वन इज अनलाइक सर्ड्स. एवरीबडी सेज फर्स्ट वन अनलाइक. ओके, एनी अदर आंसर्स? Wrong answers. 52 can be written as 4 into 13. 13 ones are 13, 13 twos are 60, 26, 13 threes are 39, 13 fours are 52. So 13 fours are, we can write like this. So 4 comes out of the, I will write it here. Okay. So see,
52 can be written as 13 into 4, so it can be again written as 2 into root of 13. So 2 into root of 13 and 5 root of 13, these are like surds. So answer of first one should be like surds. Now second one का क्या है? सिंपली एक काम करना है, देखो आपको मैं ट्रिक ट्रिक बताता हूँ। ओके, अभी ये दोनों मैंने क्या किया, लाइक सर्ड है या फिर नहीं, मुझे चेक करना था, राइट, इन दोनों को। तो मैंने क्या किया, इस 13 से ना, 13 तो मुझे पता है, 13 का तो अभी मैं उसको सिंप्लीफाई और नहीं कर सकता, तो मैं सिंपली इस 13 से इस 52 को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके लाइक सर्ड होने के चांसेस है। नाउ इस 3 से आप इस 63 को डिवाइड कर सकते हो क्या? कैन यू डिवाइड दिस 63, 68? No, you cannot divide. So simply it is unlike third. Second one is unlike. Third one, अभी देखिए 2 से आप 18 को डिवाइड कर सकते हो, मतलब 9 2s are 18. So these has to be like sorts. Third one, like sorts. 9 2s are 18, right? Yeah, good. 3L. Now fourth one, simple हुआ कि नहीं? अभी 3 से डिवाइड करो, 3 4s are 12. Fourth one is also like sort. Very good. Fifth one, fifth one is unlike sort. Okay. Fifth one is again unlike. Even though we can divide by 11, like 11 2s are 22, 11 the 3s are 33, but still they are not like. Okay, they are unlike sorts. Last one, they're like sorts. देखो सिर्फ डिवाइड होता है इसका मतलब नॉट नेसेसरी कि वो लाइक सर्ड हो। ट्राई करो, डिवाइड करो। 75 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, बराबर। मतलब आप 75 को क्या लिख सकते हो, 75 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 15, isn't it? सो इसमें से आप 15 को बाहर निकाल सकते हो या फिर 5 को बाहर निकाल सकते हो, नन, किसी को भी आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। 15 का भी स्क्वायर रूट नहीं है, 5 का भी स्क्वायर रूट नहीं है, सो दीज टू आर अनलाइक सर्ट्स। दीज टू आर व्हाट, अनलाइक सर्ट्स। इवन 5 से हम 75 को डिवाइड कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दीज आर अनलाइक सर्ट्स। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट कि 5 multiplied by 15 becomes 75, but nor 5 neither 15 can be taken out. राइट, समझ रहे हो ना? मतलब मैं कहना, सी मैंने ये डिवाइड करने की टेक्निक आपको क्यों बताई, क्योंकि डिवाइड अगर होता है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दे कैन बी लाइक सर्ट, बट इट इज नॉट 100% दे कैन बी सर्ट्स, दे कैन बी लाइक सर्ट्स। मैंने क्या कहा कि पॉसिबिलिटी है, अगर डिवाइड ही नहीं होता है सो देर इज नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं होता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि दीज आर अनलाइक सर्ट्स, बट अगर डिवाइड होता है तो आपको चेक करना है कि एक्चुअली दे आर लाइक सर्ट्स और नॉट। गॉट इट? आई होप गॉट इट एवरीवन। यस, well, that's good. Let's move to the next question, students. Simplify the following sorts. Try it. First one, simplified. You have to do it all. No, it cannot be 3. It cannot be 3, Ayush. 3 square is 9. It is square root of 27. नहीं, 3 रूट ऑफ 9 नहीं विशाल, थोड़ी सी गलती हो गई। 3 रूट ऑफ 3, 3R3 होना चाहिए, या इट शुड बी 3R3। ठीक है, नाउ क्लियर एवरीवन? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं इसे, इट कैन बी रिटन एज 9 into 3. So we will take this 9 out. So it will be, let me just reduce the pointer. Okay. So इस 9 को हम अगर बाहर लेंगे तो ये बनेगा
3 root of 3. This is how. All right. So इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. Now square root of 50, simplify it. 5 root 2, very good, done. 5 root 2 सब लोगों का आ गया, very good. Third one, third one, 5 root 10. All right, 5 root 10, correct. Fourth one, 112 or 112. 4 root 7. Okay, is it? 16 multiplied by 7 is 112. Okay, that is correct. 4 root 7 is correct. Last one, 168. Square root of 168. Square root of 168. Take your time. 2 into root of 42. ओके, इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्या? Everyone sure about this? It cannot be simplified. All right. Let me check, huh? Just give me a second. I'll check it. Which practice set we are learning? Practice set 2.3. Okay. Practice set 2.3. Just wait, students. Yeah. 2 root of 42 is correct. Compare the following surd. Now आपको arrow किस तरह से लिखना है पता है? अगर see, can you type arrow on your keyboard? या सो अगर ये अगर बड़ा है ना, सो आपको यहाँ पे लिखना है और ये एरो लिखना है सिर्फ, राइट? सो बताओ फर्स्ट और सेकंड में क्या, विच वन इज ग्रेटर और वेयर द एरो शुड पॉइंट? 7 root 2 and 5 root 3 are there. Okay, so 7 root 2 is greater than 5 root 3. 7 twos are sorry, 7 twos are 49, twos are 98, and 15 threes are, yeah. Oh, okay, yeah. So your the direction of arrow is correct. For second one, ओके विशाल, नहीं है, ठीक है विशाल, नो इश्यूज. सिर्फ सिर्फ समझ लो विशाल, ठीक है? एरो नहीं है तुम्हारे कीबोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं. सेकंड वन, इसके लिए ट्राई करो. इसके लिए कहाँ पे रहेगा एरो के डायरेक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा, राइट? या नाउ दिस वन, these two are equal. Sixth one is equal. How come equal? It should not be equal, na? I'm not asking about this. I'm not talking about this. I'm talking about this. What will be the direction of arrow? Which is greater? Yeah, 5 root 3 will be greater than 9. 5 goes inside the square root, becomes 5 threes are 15, and if the 9, if we write it in the form of square root, it will be root of 3, which is smaller than root of 15, right? So this is how we do how we do it. Now next one, simplify. So can you simplify this? 13 root 3, as simple as that, right? 13 root 3. Now simplify this. Simplify this. It can be written as 125 can be written as
5 root 5, 5 root 5, right? So 9 plus, yeah, what it will be? Tell me, second one. Calculate it. Keep notebook with you. देखो अभी भी वैष्णवी यू आर नॉट आंसरिंग विच इज नॉट करेक्ट. ओके, everybody is answering. Vaishnavi, you have to answer. Vinith, are you answering? Okay, Vinith is answering. Very good. If you are not understanding, you tell me. ठीक है, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, so you can frankly talk to me ना. ओके, 10 रूट 2 किसने लिखा? वाई विनीत? 10 रूट 2 क्यों? 10 रूट 5 होना चाहिए. नहीं ठीक है, इफ इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक देन इट इज ओके. ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक इज एक्सेप्टेबल, बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. ठीक है, चलो गुड. ओके, नाउ वैष्णवी इज आल्सो टाइपिंग. वेरी गुड. सो इस तरीके से रिस्पॉन्स देना है वैष्णवी. ठीक है, जब तुम टाइप करते हो ना तो तुम्हारा जो आंसर है वो दिमाग में फिट बैठ जाता है, आप भूलते नहीं हो उसे. नाउ सॉल्व दिस वन. थर्ड वन सॉल्व करो. फोर्थ वन आपको होमवर्क रहेगा. दिस इज होमवर्क. ओके, थर्ड वन सॉल्व करो. चलो एवरीवन. 24 रूट 3. ओके, दैट्स वेरी फास्ट. अभी मैं आयुष में तुमको करने को बोलूंगा. सिर्फ पीछे देखकर आंसर नहीं बताना है. कोई भी अगर इफ एनीवन इज copying, then that is not correct. Okay, you have to solve it. ठीक है, ये रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा. इस दिस विल बी 3 रूट 3. ठीक है, एंड दिस विल बी व्हाट. इसको कैसे लिख सकते हैं बताना जरा मुझे. हाउ इट कैन 48 कैन बी स्प्लिट इनटू. आयुष बताना, 48 को कैसे लिखा आयुष तुमने? हाउ डिड यू राइट 48? 48 को तुमने सिंप्लीफाई कैसे किया? बताओ बताओ. 24 रूट 3 निकाला है ना आपने. सो 48 को कैसे स्प्लिट किया? 24/2. रॉन्ग. 24 into 2 कैसे लिख सकते हो? नहीं, 4/12 भी कैसे कादम्बरी? नहीं, 24 into 2 अगर तुम लिखोगे ना, सो 24 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हो. 2 का भी स्क्वायर रूट, 2 हमें चाहिए ही नहीं ना. 16 3s are 48. इस तरीके से लिखना है ना. देखो सी आई डोंट नो आप लोगों ने आंसर कैसे निकाले, लेकिन ये आपको सारी चीजें समझनी चाहिए. देखो, मैं 7 into 48 को कैसे लिखूंगा? 7 एज इट इज रहेगा. राइट. इस 48 को मैं लिखूंगा 16 into 3 माइनस इस 27 को मैं लिखूंगा 3 into 9 माइनस रूट ऑफ 3 रहेगा एज इट इज. अभी मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ. ओके, सो 16 बाहर आ जाएगा तो 7 4 28. 28 रूट ऑफ 3. ठीक है, 7 4 28. नाउ माइनस, अभी ये 9 बाहर आ जाएगा तो 3 रूट 3 एंड माइनस रूट 3. सो माइनस रूट 3 इंटू माइनस सॉरी माइनस 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 इज माइनस 4 रूट 3 एंड 28 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 इज 24 रूट 3. सो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा. ओके, सो कोई बता रहा है 24/2, कोई बता रहा है 12/4 विच इज नॉट करेक्ट ना. ओके, सो डोंट डू इट वट एवर यू आर डूइंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कंसेप्ट. यहाँ पे आंसर जल्दबाजी में देना इज नॉट नेसेसरी. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गिव a prize for anyone who is giving answers quickly, but I will be more happy if you understand the concept. Even if you give the answer late, that is no problem. ठीक है, but giving answer correctly and understanding the thing is important. समझ रहे हो सब लोग? सो नो रेस. ठीक है, यहाँ पे आंसर देने की रेस हमें नहीं लगानी है. ठीक है, गुड. टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इट एंड देन आंसर. नाउ मल्टीप्लीकेशन करो. चलो अभी ये फोर्थ वन करो मल्टीप्लीकेशन. सब लोगों ने नोटबुक पे करना है. आंसर डायरेक्टली चैट बॉक्स में टाइप नहीं करना है. आराम से नोटबुक पे ये मल्टीप्लीकेशन करो एंड देन
with your calm mind give the answer. फिफ्थ वन, सॉरी फोर्थ वन, सेवेंथ में फोर्थ वन। ठीक है, सब लोग सॉल्व कर रहे हैं। 10 रूट ऑफ 8। ओके, वी विल चेक। और कोई आंसर्स? 10 रूट ऑफ 8 नहीं। सी। 5 into 2 क्या होता है? 10 होता है, करेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है? 8 होता है। सो इट विल बी 80। ठीक है, 5 into 2 आपने कर लिया 10, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 8 आप यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हो। अगर ये एडिशन होता तो इट विल बी अगेन 7 रूट 8, नॉट 10 रूट 8। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन में आपको रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है उसको भी मल्टीप्लाई करना होता है। अभी ये ट्राई करो, चलो ट्राई दिस वन, थर्ड वन। थर्ड वन। आराम से सॉल्व करना है, एकदम काम माइंड से। ठीक है, टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही होना चाहिए। 3 रूट ऑफ 8 into रूट ऑफ 5। I'm very happy that everyone is solving. Okay, solve it. Done everyone? नहीं हुआ है तो आराम से करो। We still have 7 minutes. Okay, so no hurry. This will be our last example. So last example है, आपको करेक्टली आंसर करना है। Think about your answer. चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एवरीबडी, ओके, 6 रूट 10। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, तो चलो कैसे आए हम देखते हैं, ठीक है। सो पहले 3 रूट ऑफ 8 कैन बी रिटर्न एज, व्हाट इट कैन बी रिटर्न एज? 4 into 2 इंटू रूट ऑफ 5 एज इट इज लिखेंगे हम। ठीक है, सो ये 4 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा? 6 रूट 2 इंटू रूट ऑफ 5 बनेगा। नाउ रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 2 क्या बनेगा? 6 रूट ऑफ 10 रहेगा। ठीक है, दिस इज वन मेथड। नाउ नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड इज, सी,
Square root of 8 multiplied by square root of 5 is square root of 40 and 3 as it is. ठीक है, so मैं इस 40 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 into 40 can be written as 4 into 10. So again this 4 can be taken out and it can be written as 6 root 10. All right everyone, सबको समझ में आया? All right, fine. So as I said, this was our last example for today. How many examples are remaining? Question number 8, 9. Okay, two questions are remaining. So don't solve these questions. No need, no necessity. Okay. लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने लिखने हैं एंड यू हैव टू पोस्ट इट ऑन गूगल क्लासरूम. मैं आपको होमवर्क वो पोस्ट कर दूंगा, वहां पे आपको सारे क्वेश्चंस लिख के पोस्ट करना है. ओके, ऑल राइट. ओके फाइन, ठीक है. तो चलो, बाय बाय एंड गुड नाइट एवरीवन. नाउ यू आर फ्री टू लीव द क्लास. थैंक यू एंड बाय.